बेसिकली हम लोग का मन पूरी तरह से हम लोग के साथ में नहीं रहता है, तो हम लोग थोड़ा सा समय बिता रहे हैं हम लोगों का फिजिकल बॉडी और मेंटल स्टेट दोनों भी एक जगह लाने के लिए, सेंटर करने के लिए। ठीक है। सो पिछला सेशन भी हम लोगों ने 5 मिनट सेंटरिंग किया था। ये सेशन भी हम लोग 2-3 मिनट के सेंटरिंग के साथ शुरू करेंगे। So every time we begin a session and end a session with centering. So sit in a comfortable place, sit in a comfortable position. सिर्फ ये कोशिश कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है एंड या आपके लंग्स पे, पेट पे और पीठ पे कहीं प्रेशर नहीं आना चाहिए। बस क्लोज योर आईज जेंटली एंड जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है कहीं पर भी। जब भी कोई ख्यालात आपके मन में आते हैं तो बहुत जेंटली अपने मन को वापस लाइए, ना कि जोर जबरदस्ती से। अगर कहीं पर भी आपको कुछ ऐसे महसूस हो रहा है कि पूरी तरह से आपका मन वापस नहीं आ रहा है, तो आप अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों पर ध्यान ऐसे देंगे कि आपके हर स्टेप को आपको रिवर्स काउंटिंग करना है। मतलब जब आप इनहेल करेंगे तो आप 10 काउंट करेंगे, एक्सहेल करेंगे तो 9 काउंट करेंगे, वापस इनहेल करेंगे तो 8 काउंट करेंगे, एक्सहेल करेंगे तो 7 काउंट करेंगे। इस तरह से 1 तक आपको काउंट करना है। ओके, सो जेंटली क्लोज योर आईज। Einer Zeitwurf in Daten. Ist es nicht verwunderlich, dass Spezialisten sich auch später
Gently become aware of the sounds around you and open your eyes. Okay, so we have दीपाली मैम, आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया था ना मेरे ख्याल से? Yes, yes. ठीक है, तो we have one. Okay, so we have one more person with us, Dr. Mohana Kulkarni. Are you there? Okay. So जिस तरह से हम लोग प्रवीण सर से और ज्योति मैम से मिले थे, उसी तरह से डॉक्टर मोहना कुलकर्णी will also be there for few of the sessions, especially related to gender education. And yeah, so if you can hear us, so maybe you can just say hi to everyone. Alright, ठीक है. तो एक हम लोग का पिछले सेशन में डिस्कशन बच गया था, which was related to the quiz. I think everyone managed to attempt the quiz. मतलब अभी हम लोग का जो ये स्टडी सर्कल है, ये जो ग्रुप है, इसमें से सब लोग ने अटेम्प्ट कर लिया है. वो कोई ऐसा है जिन्होंने वो क्विज अटेम्प्ट नहीं किया है? So you can raise your hands. Okay, you have not attempted the quiz. तो I'll share the link right now. अगर हो सके तो अभी आप attempt कर सकते हैं. Otherwise, you can be present for the discussion and then just take a look at the questions later on. Okay, I have pasted the link to the quiz in the chat. अगर आप अभी attempt करना चाहते हैं तो there she is. Hello. Okay, so Dr. Mohana Kulkarni is with us, and as I said, she'll be taking a few very important sessions related to gender, gender and sexuality. तो जैसा you know कि most of us we have been dealing with schools and environments जहाँ पर these topics are not मतलब the children are not educated properly in these topics, क्योंकि ये हम लोग जिसे हम लोग टाबू बोलते हैं, मतलब इसके बारे में बात नहीं की जाती है या कुछ ना कुछ लोगों को भ्रम है इसके बारे में, तो ये सब इश्यूज होते हैं. So if you would like to just share a gist of it, so maybe we can hear a little bit from you. Yes, I think this is a very interesting topic and a very important topic also. And I really feel it has to be taught
not just taught, but properly discussed right from the beginning, in maybe from the age of 8, 10. That will be better if we start earlier. And the more free you feel to talk about it, the children will feel more free. So if we don't have much inhibitions about it, or as the word you used, taboo about it, it will be better for children to have a better perspective of the sex education, sexuality, gender equality. See, all these words we feel they are from the book, and they are only to be seen in the book. No, they are part of our day-to-day life. So we just don't have to read it only in the books, but practice it in our day-to-day life. So in our day-to-day life, what sort of gender equality we have in our mind, what sort of sexuality education that we have received. So all this we will be discussing, and how to have your own ideas clear. Because unless you have your own ideas clear, you will not be able to share it with children. So get your own ideas clear. We will have discussion about it, and then you can freely discuss it with children. If they have any questions, you can give proper answers, or you can, if you don't have answers, you can say, okay, let us find out something about it. So that is how it should go ahead. That's how I feel about it. Okay, thank you. थैंक यू. सो जिस तरह से हम लोगों ने प्रवीण सर का देखा कि वो एक संस्था चलाते हैं दिशा नामक, उसी तरह से डॉक्टर मोना कुलकर्णी भी एक संस्था चलाते हैं स्वानंद के नाम से. तो दैट ऑर्गेनाइजेशन डील्स विथ मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ. तो काफ़ी स्कूल्स में और काफ़ी बच्चों के साथ में काउंसलिंग करके, फैमिलीज के साथ में काउंसलिंग करके उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है इस माध्यम से. So we'll continue with the discussion related to the quiz. I'll share the quiz on the screen. आप में से जितने लोगों को जो सवाल है आप पूछ सकते हैं, बिकॉज आई नो कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये क्या रिडिकुलस ऑप्शंस है, एंड मतलब इनके बीच में क्या चूज करना है, थिंग्स लाइक दैट. तो या Does anyone have any specific questions और नहीं तो हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जहाँ पर आपको कोई असहमति है तो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इन क्लास? तो okay, now this is an exercise of honesty and curiosity and also wanting to learn. यहाँ मतलब normally I would have said humility, but do not bring humility into this because अभी हम लोग थोड़ा सा साइंटिस्ट के नजरिए से काम कर रहे हैं. We are trying to figure out where we are and we are trying to figure out where we want to go and what is the track there. किस तरह से कौन से पद से हम लोग को जाना है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए. तो फर्स्ट लेट अस चेक कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कितने लोगों के आंसर सही निकले. यू कैन रेज योर हैंड्स. Excuse me, sir. Yes, who was that? Jyoti ma'am? Yes, sir. ये फॉर्म मैंने फिल नहीं किया है. ओके, तो इसका लिंक मैंने चैट में डाला है. वो आप अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं या बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं. अभी तो वैसे आंसर्स डिस्कस कर ही लेंगे हम लोग.
but it's up to you. Okay. तो ओके, तो जो बाकी के लोग हैं, पहले तो ये लोग जो है, मैं इनसे सुनना चाहता हूँ जल्दी जल्दी एक एक लाइन में कि why did you think that this was the right answer, very quickly. सर क्योंकि अगर लर्निंग रिलेशनशिप आपका बिल्डिंग होता है तो लर्निंग तो अपने आप होने वाला है, क्योंकि लर्निंग ये ऐसी बात नहीं है कि किसी को किताब पढ़ के आए, किसी को कोई टेक्स्ट पढ़ के आए. लर्निंग इज बॉन्ड, so relationship is must. If relationship is your bonding, then each and everything is possible. थैंक यू. तो नाउ द नेक्स्ट पर्सन, या जिसको भी बोलना है, आपको इस पे ऐड करना है. इफ यू हैव एनीथिंग एडिशनल टू से, तो यू कैन ऐड. Yes, sir. Can I? Yeah. So मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशन में हम कुछ सिखा नहीं सकते और कुछ सीख नहीं सकते हैं जब तक हमारा एक बॉन्ड रिलेशन क्रिएट नहीं होता है. So it is very important for class control, for love, for knowledge. We should create first a good relationship or bond. ओके, तो एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस? जो पॉइंट्स अभी तक किसी ने मेंशन नहीं किया, ऐसे कोई है? Sir, building relation is very important because जो अपने पास जो बच्चे आते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं. अगर बड़े भी रहे तो भी अगर बिल्डिंग रिलेशन नहीं हुआ तो वो अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो सकती टीचर और स्टूडेंट के बीच में. ओके, एनीवन एल्स? सर इसके साथ, लेकिन जब हम किसी के साथ रिलेशन बॉन्ड करते हैं, स्पेशली टीचर और स्टूडेंट, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस रिलेशन की जो एक मर्यादा है वो कहीं ब्रेक ना हो. नहीं तो बच्चों में हमारा जो इम्प्रेशन होता है वो भी डाउन होता है, और दूसरी बात क्या होती है, वो हमसे डरते नहीं. मतलब मराठी में उसको बोलते हैं आदर युक्त भीति, वो होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कि ठीक है ये मैडम तो कुछ भी नहीं करते, ये तो बहुत फ्रेंडली है, मुझसे कुछ भी बोल दे चलेगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो इस बात का टीचर्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता है. So I would like to add something. Yes, Pooja ma'am. टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन इसलिए भी बिल्डिंग होना चाहिए क्योंकि हम टीचर है तो बच्चा सिर्फ हमसे ही ना सीखे. हो सकता है कि वो जो क्वालिटी उसमें है वो हमें ना है, तो हम भी उससे कुछ सीख सकते हैं और वो भी हमसे कुछ सीख सकता है. तो इससे रिलेशन अच्छा होता है, बॉन्ड अच्छा होता है बच्चे और टीचर्स में. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. सो हम लोग हर क्वेश्चन के साथ में ऐसा करेंगे. If we are not thinking ourselves, या also अगर हम अथॉरिटी ना रखे तो लर्निंग ज्यादा अच्छे से होगी. अगर हम ऑलवेज अथॉरिटेटिव इसमें जाए कि आई एम द टीचर एंड यू आर द स्टूडेंट, तो देयर इज अ लेवल बिटवीन अस, तो दैट डजंट वर्क. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि एक जगह से हम लोग को ऐसी आवाज आई कि there should be a respectful fear, and on the other side एक ये है कि बिल्कुल अथॉरिटी वाला सिस्टम नहीं रहना चाहिए, तो अपने आप लर्निंग होगा. सो लेट्स लुक एट इट दिस वे कि अगर हम लोगों के पास में एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रही तो वी नो व्हाट द अदर पर्सन डजंट लाइक. हम लोग को पता है कि उसे कौन सी चीज नापसंद है, एंड हम लोग क्योंकि उस व्यक्ति की तरफ हम लोगों को एक तरह का बॉन्डिंग है, एक तरह का लव है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि उसे चोट पहुंचे. ओके, सो दैट इज द बैलेंस. मतलब आपको डर इसलिए नहीं है कि सामने वाला डांट देगा, आपको डर इसलिए है कि सामने वाले को चोट पहुंचेगी, एंड हम लोगों का उसकी तरफ उतना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग लव है, जिसके वजह से एक तरह का बैलेंस है. लाइक पीपल डू फॉलो द रूल्स. Just give me a second.
Okay, till that time, what is the मतलब what about the others, मतलब जिनको भी ऐसे लग रहा है कि ये जो आंसर मतलब आपने जो आंसर दिया है वो ही सही रहना चाहिए था, एंड यू स्टिक बाय इट, मतलब आपको सही आंसर मिलने के बाद में, जो मैंने सही बताया वो आंसर मिलने के बाद में अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं आपने जो आंसर दिया वो ही सही था, आप अगर कुछ अपने तरफ से शेयर करना चाहे तो वील टेक 5 मोर पीपल। यहाँ से हम लोगों ने 5-6 लोग लिए, अब इस तरफ से भी 5-6 लोग लेंगे। कोई ऐसा है जो जिसे ऐसा लगा कि जो आंसर सही मार्क किया गया है वो नहीं सही रहना चाहिए था, आपने जो दिया है वो ही सही है? ओके, तो वील मूव अहेड। All right. If a child offers a teacher an apple slice, the teacher must do what? हम लोगों ने नहीं बोल देना चाहिए क्योंकि उसे भूख लगी होगी, आप क्यों उसका कुछ लेंगे। हम लोगों ने नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इट इज हम लोगों के सोशल या सोसाइटी में रूड होता है, हम लोग हरदम बोलते हैं कि नहीं नहीं दूसरों के घर पे इमीडिएटली हाँ बोल के खाना शुरू नहीं कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा वो फोर्स करते हैं तो ही खाना चाहिए, यू नो ऑल दीज थिंग्स वी हैव इन आवर माइंड। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये गलत मिला, एंड आपका वो सोचने का कारण क्या था? How many people got this one wrong, and why did you think what you thought? I thought के accept it and say thank you, क्योंकि अगर वो बच्चा हमसे कनेक्टेड फील कर रहा है तभी वो हमें शेयर करता है, क्योंकि बच्चों कैसे होता है कि वो यूजुअली चीजें शेयर नहीं करते हैं, उसे हमारे साथ एक रिलेशन लगता है तभी वो शेयर करता है। और अगर हम उसे रिफ्यूज कर दे तो उसे ऐसा ना फील हो कि इन्होंने क्यों मना कर दिया मुझे, क्या मैं इन्हें पसंद नहीं हूँ, ऐसे भी हो सकता है। तो Okay. उसे एक्सेप्ट करके फिर उसको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने टीचर से शेयर किया। थैंक यू, बट आई वॉज लुकिंग फॉर द अदर साइड। मैं उनको पूछ रहा था कि जिन्होंने इसका आंसर कुछ और दिया है एंड उन्हें वो गलत मिला है बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्शन, एंड व्हाई दे थॉट दैट उन्होंने जो आंसर सोचा वो सही रहना चाहिए था। तो कोई भी ऐसा है जिसे ये गलत मिला है, एंड आपने जो भी आंसर दिया था वो क्या सोच के दिया था, मतलब व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? ओके, सो इंटरेस्टिंगली ये जो सवाल है, इफ आई कैन रिकॉल, मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है तो ये सवाल ऐसा था जिसमें किसी ने गलत आंसर दिया ही नहीं। सो yes, congratulations to you all for understanding what is probably going through a child's mind when they ask this question. So we'll move on to the next one. अब यहाँ है कुछ लोगों को कुछ लोगों ने कुछ और आंसर्स दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू अलेक्जेंडर, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अलेक्जेंडर जिसे हम लोग अलक्ष बोलते थे। This is also related to the Mughals. This is also related to the British.
तो when Alexander and the Greeks invaded India, who did they kill or imprison first? सबसे पहले उन्होंने किसकी जान ली और किनको जेल में डाला? तो इसके ऑप्शंस थे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल और टीचर्स। तो ये जो स्ट्रेटेजी अलेक्जेंडर ने अपनाई, ये सिर्फ अलेक्जेंडर की स्ट्रेटेजी नहीं थी। This was there from the time of Muhammad Ghori and then the British also and ये औरंगजेब, सब लोगों ने ये स्ट्रेटेजी को यूज किया है, स्ट्रेटेजी को अपनाया है। तो जिनको ये सही नहीं मिला, मतलब जिनको ये गलत मिला, can you come forward and share what realization came to your mind जब आपको इसका सही आंसर दिखा? आपके मन से क्या गुजर रहा था जब आपने सही आंसर इसका देखा? Is anyone sharing or should I go forward? I got this wrong. Okay, so you can share. Yes, I got disconnected for a while. So I chose government. I didn't knew the history about Alexander. I just knew that he didn't actually entered India. He was there on the northwestern border, and the fight was there. Then he ruled some kings, and then he let them. मतलब he conquered some kings, and then he let them rule it. मतलब rule the kingdom. तो उनको उसको तो उन्होंने इम्प्रेशन नहीं किया था, तो फिर वो वहां से ही वापस चला गया था। दिस इज व्हाट आई न्यू। तो चारों ऑप्शन में से मुझे लग रहा था कि पांचवा ऑप्शन होना चाहिए था कुछ, कि वो नहीं आना चाहिए था, ऐसा कुछ। तो आई डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, दैट्स व्हाई आई गॉट दिस रॉन्ग। मैंने फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सोचा, बिकॉज मे बी उसकी स्ट्रैटेजी में वन ऑफ द, मतलब वो वॉर सभी के सभी जीत रहा था इन हिज जितने भी उसके करियर में वॉर्स थे। सो मे बी टू विन द वॉर उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट किया होगा। दैट्स व्हाई आई चोज द थर्ड ऑप्शन, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी आइडिया। थैंक यू। Okay, anyone else? कोई और ऐसा है जिनको ये इस पेज का लास्ट वाला क्वेश्चन गलत मिला है, एंड जब आपने सही आंसर देखा तो आपके मन से क्या गुजर रहा था? बिसाइड्स दिस ऑल्सो, ये सही गलत छोड़ के भी अगर किसी को कुछ ऐसे शेयर करना है जो आप सोच रहे थे जब आपको ये सवाल दिखा या ऐसा कुछ, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। Yes, I would like to know if the source of this, मतलब Okay. from where did you get this information? Okay. So for that we also have to look at the process. तो एक तो हम लोगों ने जो चाणक्य का ड्रामा किया था, तो उस समय जो रिसर्च किया था उस हिसाब से जो नालंदा तक्षशिला थी यूनिवर्सिटीज, तो when the Greeks entered India, so at that time they had already started influencing the what was being taught in Takshashila and Nalanda. तो हम लोगों के जो वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटीज जो थे, वहां पर क्या सिखाया जाए उस पर उन्होंने धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू किया, which was one of the reasons why चाणक्य decided कि बहुत हो गया, now we need to fight, otherwise something will happen. So this was one strategy, and the other was burning libraries. तो टीचर्स को सबसे पहले किल करना, टीचर्स को सबसे पहले इम्प्रिजन करना, लाइब्रेरीज बर्न करना, दीज आर द कीज टू डिस्ट्रॉइंग अ सिविलाइजेशन। यस दीपाली मैम। कोई भी
सिविलाइजेशन हो, कोई भी चीज हो, इसमें अगर बहुत सारा बदलाव आपको लाना है तो वो टीचर ही ला सकता है, ये भी एक बात है। तो इसीलिए वो ऑप्शन ज्यादा जरूरी लगा मुझे। Thank you, Deepali ma'am. So this is the thing, because even since that time, nobody knew the psychology of a society. Nobody knew the psychology of a child, the youth. मतलब इतने डाइवर्स लोगों की साइकोलॉजी जानना is a treasure trove. It's a big treasure for and which is possessed by the teacher. जो टीचर के पास ही इसकी चाबी रहती है. एंड इसी वजह से द टीचर्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस पीपल फॉर someone who wants to control a society, control a country. ठीक है, anyone else has any questions on this? In fact, ये भी तो हुआ था ना, the Library of Alexandria, the biggest, or at that time what was supposed to be the largest library in the world, when they wanted to conquer the country, so that was the first thing that they burned. They destroyed the library. Yes, so there's one interesting input in the chat also. Oops, okay. Yeah, we'll have to use this. So यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है? When do children learn more? उसके बाद Montessori is a class, grade, surname, qualification. Yes, Deepali ma'am. सर ये मैंने चूज किया था क्वालिफिकेशन, लेकिन ये मुझे गलत मिला। ये सरनेम इसका राइट आंसर है, ये पता था, लेकिन मॉन्टेसरी एक सरनेम नहीं है, सिर्फ ये एक सिस्टम है। और जो ऐसे मॉन्टेसरी स्कूल्स खुलते हुए दिखते हैं गली गली में, तो मॉन्टेसरी का कुछ तो पता उनको होता नहीं है, बस जस्ट एक नाम होता है मॉन्टेसरी, बट मॉन्टेसरी इज अ सिस्टम दैट आई नो, सो आई चूज द क्वालिफिकेशन एंड आई गेट रॉन्ग। Okay, so इसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ये है, बिकॉज वी हैड बीन स्टडीइंग दिस रिसेंटली, अ कपल ऑफ इयर्स बैक। तो जो मॉन्टेसरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज रन बाय मॉन्टेसरीज, आई थिंक सन और ग्रैंडसन, वन ऑफ देम। तो वो जो है, दे आर काइंड ऑफ लाइक अ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो दे जस्ट क्वालिटी कंट्रोल की तरह वो लोग सर्टिफाई करते हैं, not as a that qualified for Montessori. It is a Montessori philosophy trainer qualification. So ultimately it is still a philosophy, and the person जिसकी philosophy है वो, she is Maria Montessori, or she was Maria Montessori. तो अब तक ऐसा नहीं है कि जैसा हम लोग बोलते हैं अर्जुना अवार्ड वगैरह ऐसा, तो अब तक ऐसा कोई भी ये नहीं है ऑफिशियल, एंड वो भी मारिया मोंटेसरी का खुद का सैंक्शन किया हुआ कोई सिस्टम नहीं है विच पीपल हैव द राइट टू क्लेम कि मैं मोंटेसरी क्वालिफाइड हूँ। सो इट्स अ बिग कंफ्यूजन, एंड ये कंफ्यूजन यूज करके आपने जिन स्कूल्स के बारे में बताया वो उसका एडवांटेज लेते हैं, एंड दे ट्राई टू एनकैश इट। नाउ एज आई सेड कि द एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें
मॉन्टेसरी के अलग के आगे के जनरेशंस है, मतलब सन, ग्रैंडसन, व्हाटएवर, तो इवन दोज ऑर्गेनाइजेशंस हैव टर्न्ड इट इनटू अ वेरी बिग बिजनेस. अगर हम मॉन्टेसरी की खुद की बुक्स पढ़ते हैं, मारिया मॉन्टेसरी की बुक्स अगर पढ़ते हैं, जो बाय द वे अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, मगर मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगेन दैट इज अ वेरी बिग बिजनेस. तो उन बुक्स में भी यही लिखा गया है कि जितने नेचुरल, जितने नॉर्मल और जितने सिंपल चीजें यूज की जाए उतना ज्यादा अच्छा. ये जो मॉन्टेसरी इक्विपमेंट की हम लोग बात करते हैं, मॉन्टेसरी टॉयज की बात करते हैं, these are all a brand. These have got actually directly nothing to do with Maria Montessori. मारिया मोंटेसरी के फिलॉसफी के हिसाब से हम लोगों ने चीजें वही इस्तेमाल करनी चाहिए जो हम लोग के आसपास है. एंड ये जो खिलौने रहते हैं, जो टॉयज रहते हैं, these are not things that are found naturally. आप घर के कार्टन्स को यूज कीजिए ना. आप घर के आसपास में अगर जाम, सीताफल, अनार वगैरह अगर उगते हैं तो उसे यूज कीजिए काउंटिंग के लिए, फॉर फिंगर रिलेटेड एक्टिविटीज, सेंसरी एक्टिविटीज. इन सब चीजों के लिए यूज समथिंग नेचुरल. हम लोग के पास में इतने ज्यादा रिजर्व्स है कि यहाँ तक मॉन्टेसरी का जो मेन पीक फेज था, जब उसने सबसे ज्यादा बुक्स लिखे हैं, वो फेज आया हम लोग के वर्धा में जो नई तालीम स्कूल है, गांधीयन फिलोसफी के ऊपर बेस्ड, वो देखने के बाद उनका मेन पीक फेज आया, जब उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है. ओके, सो डज दैट क्लियर इट? Yes. So even in our school, what we try to do is peeling green peas, मतलब मटर छीलना, फिर sorting grains. तो अगर एक ही इसमें अगर मूंग और चने और ऐसी चीजें हैं, तो उसमें एक एक करके, सॉरी ग्रेन्स मतलब राइस और व्हीट वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें अगर हम लोग यूज करते हैं तो देन दैट इज बेटर. नाउ मूविंग टू होलिस्टिक एजुकेशन. आई नो यहाँ बहुत कंफ्यूजन हुआ है, सो जिसको भी यहाँ सवाल है, प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके, 1, 2, जल्दी जल्दी रेज कर लीजिए ताकि हम लोग इसको डिस्कस कर पाए. ओके, ठीक है. सो हियर इफ यू नोटिस के द सेकेंड ऑप्शन एंड द थर्ड ऑप्शन ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है, बट देयर इज वन की डिफरेंस. कैन यू नोटिस द डिफरेंस? सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में क्या फर्क है? The sequence has been changed. ओके, अब थोड़ा सा सोचिए कि जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं, तो अगर हम लोग छोड़ दें उन्हें, कोई स्कूलिंग सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, तो नेचुरली उनका क्या, कब, कैसे डेवलप होगा, किस सीरीज में डेवलप होगा? According to me, it is second option is right. Hand, heart, head, and then spirit. Yes. क्योंकि वो सबसे पहले हाथों से छुएगा हर चीज को, फिर उससे महसूस करेगा हार्ट से, फिर उसे सोचेगा हेड से, और फिर उसकी स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी. आई थिंक. ओके, सो हैंड जो है, जो फिजिकल मूवमेंट्स है, they are very necessary for building the faculties of using your heart, of using your head, and of using मतलब of being in recognition of your spirit. तो
सबसे पहले फिजिकल डेवलप होता है, इसीलिए बच्चों को बहुत भागने की आदत होती है, इसलिए बच्चों को बहुत चीजें पकड़ने की आदत होती है। इवन व्हेन दे टॉक, वो इस तरह से बात करते हैं कि दे आर फीलिंग देयर टंग, दे आर फीलिंग देयर टीथ, दे आर फीलिंग देयर माउथ। तो इसलिए हम लोग काफी बार देखते हैं कि काफी बच्चे कोई शब्द को 3-4 अलग-अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, एंड हम लोग को उससे बहुत इरिटेशन होता है, क्योंकि हम लोगों को एक ही प्रोनाउंसिएशन पता है उसका। So that is why in the natural sense of development, a holistic education, holistic मतलब overall पूरा सब कुछ include करता हुआ जो education है, वो पहले physical develop करेगा, next emotional develop करेगा, फिर intellectual develop करेगा, and all this will be in the presence of the spirit. Okay, पहले तो spirit the spirit doesn't need to be educated, the soul doesn't need to be educated, the soul needs to be recognized, and वो recognize करने के लिए पहले ये 3 डेवलप होने बहुत जरूरी है। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. I like Now- to get sir more information about holistic education. Yes, like to get या give? Not give, take अच्छा by you. डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द थिंग्स ऑन द लिस्ट, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसका सेंट्रल फोकस एनईपी रहेगा। तो एनईपी में ये जो 3-4 शब्द है ये बहुत बार वापरे गए हैं, होलिस्टिक एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो हम लोग इन सब चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, एंड वी विल डिस्कस अ लॉट अबाउट इट। वी विल, ये एक उद्देश्य, एक एम ये वर्कशॉप का ये भी है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई कीप इट, मतलब आई चार्ज अ लिटिल बिट फॉर इट, इज बिकॉज इसका भाग कहीं पर भी अगर आपका थोड़ा अधूरा छूट गया तो देन वो आप ही को बहुत भारी पड़ेगा। दैट इज व्हाई दिस इज फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज नॉट अ फ्री वर्कशॉप, एंड जिनके लिए फ्री भी है वो उनके लिए पेमेंट कहीं और से आ रहा है, एंड देयर अटेंडेंस इज कंपल्सरी। सो कुछ ऐसी चीजें रहेगी जो हम लोग इंटर रिलेटेड डिस्कस करेंगे, एंड वो ऐसी चीजें रहेगी जो सारी बातें अगर उसके आपको पता चल जाए तो आप अपना खुद का मटेरियल, आपका खुद का ट्रेनिंग मॉड्यूल, आपका खुद का सब कुछ तैयार कर सकते हैं बाय योरसेल्फ। ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू गेट देयर इन बेबी स्टेप्स। मतलब वो एक बार आपके पास में चीजें रहेगी तो उसके बारे में सोच के, उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके, अप्लाई करके आप बहुत कुछ अपना खुद का बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज सोसाइटी? यहाँ जिसको भी कंफ्यूजन है वो क्या कंफ्यूजन है? Here, this was the answer which I got wrong. So here the correct answer is a group of people with identical or similar beliefs living together, which I don't agree. I mean, it's not necessary that it's a the society में सभी लोगों के identical beliefs रहते हैं. There are people who have got different beliefs and Okay. so I just marked your people living in the same geographical area of a city, like in apartment together. All right, Neena ma'am. All right, Neena ma'am. Even I also got this wrong, sir. I also take second one. Okay. So इसके फर्स्ट ऑफ ऑल एक आंसर नहीं है, 2 आंसर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है, एंड जो लास्ट वाला है इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट, वो है।
I'll explain both of them. तो इफ यू बिलीव कि आपके सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप डिसएग्री करते हैं, जिनको आप who irritate you, annoy you, आप सोच भी नहीं सकते कि how do these kind of people exist in our society, things like that. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि आप बहुत स्पेसिफिक चीजों के बारे में सोच रहे हैं. थिंक स्लाइटली लार्जर. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट बिलीव, आपके सर के ऊपर छत रहना चाहिए, राइट? तो आप जहां पर भी रहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट इज व्हाई दे ओन हाउसेस, दैट इज व्हाई दे रेंट हाउसेस, दैट इज व्हाई दे लिव इन हाउसेस. If you didn't believe this, you would probably be living in a forest. Correct? First, very simple principle. The same extends to the other two. That is roti and kapda. मकान ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया. ठीक है? तो मोस्ट ऑफ अस बिलीव कि हम लोगों को दिन के 3 मील्स रहने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. मोस्ट ऑफ अस बिलीव कि हम लोगों को जीने के लिए खाना ही पड़ता है एंड रोज खाना पड़ता है. मोस्ट ऑफ अस बिलीव कि टू लिव मीन्स टू वर्क. जीने के लिए कुछ तो करना पड़ता है करके. यही अगर आप इस सोसाइटी में रहते जहां पर इन सब बातों में लोगों के बिलीव्स अलग है. कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बिलीव ही नहीं करते कि सर के ऊपर छत रहना चाहिए. कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बिलीव ही नहीं करते कि रोज खाना चाहिए. कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलीव ही नहीं करते कि कपड़े पहनने चाहिए. कैन यू इमेजिन लिविंग इन अ सोसाइटी लाइक दैट? वुड दैट बी कॉल्ड अ सोसाइटी? विल यू बी स्टिल लिविंग देयर? No, then it would be hard. मतलब if we don't have this person with same beliefs around us, then we will be an outcast in that society. Right? So that is one. The second is कि this is an imaginary concept. होते हैं हम लोगों में से कितने लोगों ने ऐसे रिटर्न अग्रीमेंट लिया है कि मैं अग्री करता हूं कि मैं आपका पड़ोसी बनूंगा, मैं अग्री करता हूं कि जब आप रास्ते से गाड़ी चलाएंगे तो मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा, या फिर मैं अग्री करता हूं कि मैं गाड़ी रास्ते पे ही चलाऊंगा, किसी के सीढ़ी के ऊपर घर के अंदर नहीं घुसाऊंगा. Have we written this, or is there like a physical binding for all these things? कि ये सब हम लोग के मन में है. Mentally, we have all agreed to this. Like if there is a function in an area, so and if we have put DJ, so obviously will not put on the DJ between the afternoon hours because सब disturb हो जाएंगे. So mental agreements we have made. Right? तो हम लोग सोचते हैं कि दूसरे को इसका क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग ये बातें नहीं करेंगे. करेक्ट? तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट. ये किसी ने आपको मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट लाइक अ माउंटेन, राइट? कि यहाँ पे पहाड़ है, उसको डिनाई कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. दीज थिंग्स दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके मन में है.
So it is an imaginary concept. Okay, I agree that I am not going to disturb my neighbor. I agree that I am not going to kick the cat when I go out of the door. I agree that I am not going to press 10 buttons on the elevator every time I get down or every time I go up. मैं अग्री करता हूं कि मैं रात को अपना बिस्तर लेके सीधा रास्ते के बीच में नहीं लगाऊंगा. ये सब आपकी मेंटल अग्रीमेंट्स है. These are things that you have thought about logically and you have decided कि हाँ, this is accepted, this is what we'll do. So it is an imaginary concept. Does that clear this point for everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. Now, this question. I know a lot of your optimists. क्योंकि काफी लोगों ने ऐसा बोला कि सोसाइटी सपोर्ट चेंज एंड सपोर्ट चेंज मेकर्स वगैरह ऐसा. हाउ मेनी ऑफ यू ट्रूली बिलीव दिस? Okay, Deepali ma'am, can you share your experience? सर अगर चेंज मेकर को कोई साथ ना दे तो अब तक की जो रिवॉल्यूशन हो चुके हैं वो ना हो पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है. सो सोसाइटी मस्ट बी सपोर्ट चेंज मेकर्स, क्योंकि खुद अगर कुछ बदलाव नहीं ला पाते हैं कोई, तो वो चेंज मेकर ला सकता है. वो बिलीव रखना जरूरी है. सो आई एग्री विद दिस. Okay. Yes, Bharat sir. Sir, I think we all know that there is a quote called change is the rule of nature. So it's applicable everywhere, I think so. So just think from the point of view, whenever any ruling party is there. Sir, we can't hear you. आपको ईयरफोन दूसरा लेना पड़ेगा शायद. Okay, sir. So I think change is the rule of nature. So people have tendency to accept changes every time. Just an example of any political party, if it is ruling continuously for 10 years or maybe for 5 years, and people are not satisfied, so they want change in the next term. So this is a good example that people always support change. They think that change will bring something new, something good for them. Okay. Let me put up a question कि लास्ट जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब की बनी हुई थी? It was 30 years. amended. 19? Sir, can you please repeat the question? What was the last year when the national education policy was made? जो आखिरी पिछली national education policy थी 1986. 1986. अब जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकली है NEP 2020, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से ये विश्वास करते हैं कि जब आप ये क्लास में स्कूल में लागू करेंगे तो पेरेंट्स इससे बहुत खुश होंगे? Okay, we have two optimists. Okay, so now let me put up another question कि हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम लोग की जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम लोग जीते हैं, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, I mean as a population, not individuals. Do you think it is sustainable? Sustainable मतलब हम लोग अगर ऐसी ही जिंदगी जीते रहे
तो अगले 100 साल तक कोई नुकसान नहीं होगा, 500 साल तक कोई नुकसान नहीं होगा, कितना भी पेट्रोल जलाए, कितना भी प्लास्टिक फेंके, कितना भी कुछ भी करे। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। यस इट्स दीपाली नॉट मैम। पॉसिबल। ना सर, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा फर्क पड़ेगा क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेगी। सो ये सिचुएशन अभी 1-2 साल में तैयार हुई है या ऑलरेडी उसको 10-20 साल हो चुके हैं? बहुत साल हो बनते चुके आ सर। रही है। एंड बढ़ती अगर जा कोई रही है। हाँ, अगर कोई कोशिश करता है कि मैं काम करूंगा, मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बेचूंगा या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाऊंगा, अगर कोई कोशिश करता है कि हम लोग कोई ऐसी स्कूल खोलेंगे, तारे जमीन पर तो हम लोगों ने, सब लोगों ने देख ली, सबको बहुत पसंद आई, हम लोग एक ऐसी स्कूल खोलेंगे जो बिल्कुल वैसी ही तरह से चले, तारे जमीन पर के की स्कूल जो है उसी तरीके से चलेगी। तो आपको क्या लगता है कि कम से कम हम लोगों के शहर से वहाँ कितनी एडमिशन होगी? 10, 20, 100, 150, 200? किसी की ना हो, मेरे बच्चे की तो हो जाएगी। So I hope this brings you both the sides of the coin. When you think of the population, the major population, एक तो there is a reasonable and a practical problem कि अगर एकदम से हम लोगों ने कोई चीज छोड़ के अगर चेंज के तरफ कदम बढ़ा दिया, तो जो ऑलरेडी चीज मोशन में है उसका क्या होगा? If we already have kilos and tons of plastic bags that have already been produced, जो ऑलरेडी मार्केट में है, सब्जी वाले के पास में है, ग्रोसरी किराने वाले के पास में है, ओवरनाइट अगर गवर्नमेंट ने बैन ला लिया कि कल से हम लोग प्लास्टिक वापरेंगे ही नहीं, बैंड, जिसके पास में मिला वो जेल में जाएगा, सीधा जेल में नहीं जाएगा, फाइन वगैरह लगेगी, जो भी है। तो ऐसा अगर सिस्टम जैसा बीच में हुआ भी था, कोशिश भी की गई थी, ओवरनाइट अगर ऐसे डिक्लेयर किया, डू यू थिंक के इकोनॉमी अपने आप बैलेंस हो पाएगी या कहीं ना कहीं इसका डिस्टरबेंस होगा? डिस्टर्बेंस होगा सर, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस एक्शन। सो दैट इज व्हाई हर एक परिवर्तन के लिए, मतलब हर परिवर्तन धीरे धीरे से होता है, अब वो अच्छा हो या बुरा हो, बुराई भी धीरे धीरे बड़ी होती है और फिर अच्छाई भी धीरे धीरे ही बढ़ेगी। तो ये जो धीरे धीरे वाला जो है, ये जो थोड़ा सा टाइम लगता है वगैरह, ये टाइम क्यों लगता है? ओके, वी ऑलरेडी हैव दैट आंसर इन द चैट बॉक्स। सो इनिशियली सोसाइटी रेजिस्ट चेंज और सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट चेंज ओवरनाइट, तो ऑटोमेटिकली हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर सोसाइटी सच में चेंज को सपोर्ट करती, तो प्रोबेबली द चेंज वुड ऑलरेडी हैव बीन इन द माइंड ऑफ द सोसाइटी, कि जैसे ही किसी ने बोला कि हम लोग कल से प्लास्टिक यूज करना बंद कर देंगे, तो सोसाइटी के दिमाग में ऑलरेडी ये 1-2 बार तो किसी ने सोचा होगा कि अगर ऐसा किसी ने बोला, किसी ने डिक्लेयर किया, तो हम लोग प्लास्टिक का क्या कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं या कैसे काम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इट मीन्स टू सपोर्ट चेंज, राइट? कि चेंज अगर आएगा तो हम लोग उसको बैलेंस आउट कर देंगे। So this is the problem, and it's a practical problem. It's not about malicious thinking. Malicious thinking या malice जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस तरह से कैंसर में भी हम लोग बोलते हैं malignancy, malignant tumor, तो all these mal जो है, mal जो prefix होता है, mal practices, मतलब जो गंदी चीजें हैं, so ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है,
some changes are important without thinking about society. Think about nature also, okay, because no one is ready to break comfort zone. So think of it as a practical problem कि अगर आपको चेंज लाना है, अगर आप ओवरनाइट लाते हैं, तो इज इट रियली प्रैक्टिकल? इफ यू हैव टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, तो वो सिस्टमिक चेंज होना चाहिए, या फिर मैं झंडा लेके खड़े हो गया और मैंने ये चेंज लाना शुरू कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा? No, gradually. Yes, there has to be a strategy. आज तक जो भी सिग्निफिकेंट चेंज कर पाया है सोसाइटी में, वो इसी तरह से कर पाया है कि there has to be some kind of a system, there has to be some kind of an intelligent game जिसके थ्रू हम लोग we understand how society works, we understand how people think, we understand how much of time people need to think, and we try to introduce change through that manner. Because अगर सोसाइटी सच में चेंज सपोर्ट करती, तो इट वुड बी लाइक, अगर आप किसी बच्चे को उंगली पकड़ के अगर बच्चा आपके साथ में चल रहा है और आप एकदम से तेजी से चलना शुरू कर दो, so the child will take some time to catch up, the child will take some time to start walking at that pace, and हो सकता है कि आपके लंबे कदमों के वजह से वो शायद कैच अप कर भी ना पाए। तो मुझे अगर बच्चे को चलना सिखाना है, मुझे अगर बच्चे को अगर दौड़ना सिखाना है, तो मुझे शुरुआत तो उसी के गति से करनी पड़ेगी। Because as a system, as a society, we are all growing, and since we are all growing, हम लोग क्या सब लोग एक ही दिशा में ग्रो हो रहे हैं क्या? सब लोग अलग अलग दिशा में ग्रो हो रहे हैं, अपने अपने डायरेक्शन से। सो इट इज ऑब्वियस कि पूरी सोसाइटी एक दिशा में कभी जा ही नहीं सकती। दैट इज द पॉइंट ऑफ सोसाइटी, दैट इज द पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, सो सोसाइटी डज नॉट सपोर्ट चेंज मेकर्स, सोसाइटी डज इट्स ओन थिंग। उसका खुद का एजेंडा रहता है विच इज बैलेंस, तो वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, और चेंज मेकर्स उन्हें अलग अलग दिशा में पुल करते हैं। दैट इज हाउ सोसाइटी वर्क्स। एंड एज आई सेड कि यहाँ कहीं पर भी किसी का मैलिस नहीं है, किसी का बुरा इंटेंशन नहीं है। Their intention is always balance, their intention is always stability. ठीक है, is this point clear? Yes. 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 ओके, तो ये तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वाज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कुछ ऐसे सच ये नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट देन इट वाज सिंस चेंज मेकर की बात कर रहे थे हम लोग, तो आई थॉट के एक ऐसा क्वेश्चन डालते हैं जिसमें चेंज मेकर की क्या हालत होती है वो हम लोग देखेंगे। सो ये जो साइंटिस्ट था, उसकी डिस्कवरीज उसके मरने के बाद ही सबसे ज्यादा अडॉप्ट हुई है, जैसे एसी करंट। एंड उसने बहुत सारे इनोवेशंस किए थे, बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे, जो अब भी लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अब भी लोगों को काम आ रहा है। जो हम लोग बोलते हैं कि क्विक चार्ज नहीं, क्या वायरलेस चार्जिंग, ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका प्रेडिक्शन और उसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑलरेडी उन्होंने उस समय पे कर दिया था। एंड द प्रॉब्लम वाज दैट एट दैट टाइम थॉमस एडिसन वाज ऑलरेडी फेमस। उन्होंने ऑलरेडी लाइट बल्ब निकाल दिया था, इन्वेंट कर दिया था। उन्होंने ऑलरेडी डीसी करंट इन्वेंट कर दिया था उस लाइट बल्ब को पावर करने के लिए। तो थॉमस एडिसन ने बहुत कोशिश की कि हम लोग डीसी जनरेटर बनाएंगे,
सब कुछ पूरा सिस्टम जो भी हम लोग आसपास में देख रहे हैं सारा डीसी डायरेक्ट करंट में ही चलना चाहिए. That was his plan, that was his effort. Alexander Graham Bell का यहाँ direct relation है ही नहीं because he is the inventor of the telephone. Srinivas Ramanujan was a mathematician. उनका भी इस केस में there is no direct relation. Now बचा जो है Nikola Tesla. Nikola Tesla was the person who at that time imagined free energy for the world. उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो जो भी इन्वेंट करेंगे वो डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा. डिसेंट्रलाइज मतलब उसका पेटेंट फ्री रहेगा, किसी को वो पेटेंट यूज करने का, वो इन्वेंशन यूज करने का टेस्ला को पैसा नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है. डिजाइन उसने कर दिया और उसने पेटेंट कर दिया ताकि दूसरा भी कोई उसको कॉपी करके उसके कॉस्ट खींचने की कोशिश ना करे. सो इट शुड बी फ्री फॉर एवरीवन. सो उस वजह से when he died, when Nikola Tesla died, first of all he died a madman. He died a madman मतलब सोसाइटी ने, समाज ने उसको ये पागल घोषित कर दिया था कि इसे बिल्कुल मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है. Secondly, he died a beggar. उनके पास में कुछ भी नहीं था. And third, वो इस तरह से गए कि हम लोगों को आज भी वो कंफ्यूजन है कि ऑल्टरनेट करंट एसी इसकी थॉमस एडिसन की देन. यस दिव्या मैम. ओके ठीक है. सो again, it is not because the society had something against Nikola Tesla, but it was because Thomas Edison was a more impressive person. उन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर दी, उन्होंने फैक्ट्रीज डाल दी, जगह जगह पर वो स्टैंड पर खड़े रह के स्पीचेस देते थे, वो हरदम फ्यूचर की बात करते थे, ये सारी चीजें. एंड निकोला टेस्ला was the kind of person जो अपने resources यूज कर करके बस नए इन्वेंशन, नई डिस्कवरी, नई इन्वेंशन, नई डिस्कवरी उसी में पूरी तरह से व्यस्त थे. उन्होंने ये कभी मेहनत ही नहीं की कि हर किसी ने मेरी चीजें यूज करनी चाहिए या फिर हर किसी ने सोचना चाहिए इस दिशा में. That was not something that he tried at all. So that is why this happened. So इसीलिए ये क्विज आप लोगों को दिया गया था, क्योंकि although these questions are very simple, उन्हें पहली नजर से अगर हम लोग देखते हैं तो ये सवाल बहुत आसान है, बट इसके पीछे बहुत कुछ सीक्रेट्स छुपे हुए हैं. एंड आवर जॉब एज टीचर्स इज टू अंडरस्टैंड दीज सीक्रेट्स. एंड ये सीक्रेट्स को लेकर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली जिनको हम लोग चीजें सिखा रहे हैं वो भी उतने डेप्थ से, उतनी गहराई से सोचेंगे. ठीक है. सो एनी क्वेश्चन सो फार? Okay, so we don't have enough time for the presentation today. Presentation वैसे भी मुझे लगा नहीं था कि आज लेना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग का पहला ही दिन है. तो हम लोग इसी डिस्कशन को थोड़ा अलग तरीके से आगे बढ़ाएंगे. I'll be dividing you all into groups. Keep a note of this. मैं आपको नंबर बताऊंगा, वो नंबर आपको याद रखना है. भारत सर 1, पूजा मैम 1, दिव्या मैम 1, रूपाली मैम 1, सचिन सर 1.
ठीक है, आप लोगों का सबका 1 है। नेक्स्ट रेशा मैम 1, दीपाली मैम 1, हाँ स्वाति मैम 1, सॉरी एक्सक्यूज मी, रेशा मैम 2, दीपाली मैम 2, स्वाति मैम 2 एंड मेघना मैम 2। देन मीना मैम 3, अनिल सर 3, भाविका मैम 3, दीपिका मैम 3। देन पूजा मैम 4, इंदिरा मैम 4, भुवनेश्वरी मैम 4 एंड नीलेश सर 4। Sir, I already got the number, sir, 1. How did you get the number 1? I'm with Bharat sir group. नहीं, भारत सर के ग्रुप में तो भारत सर है, ज्योति मैम है, दिव्या मैम है, रूपाली मैम है और सचिन सर है। अच्छा, you said Rupali ma'am. I thought you my name. नहीं, तो आपका 4 है, इंदिरा मैम का 4 है, भुवनेश्वरी मैम का 4 है, नीलेश सर का 4 है। अभी मैं ब्रेकआउट रूम्स तैयार करने वाला हूँ एंड आप लोगों के पास में अगले 15 मिनट है। 15 मिनट में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपके हिसाब से व्हाट इज एन आइडियल स्कूल? आइडियल स्कूल आप लोग सब समझते हैं, परफेक्ट स्कूल आपके मानसिकता के हिसाब से या आपके इमेजिनेशन के हिसाब से व्हाट इज सपोज टू बी अ परफेक्ट स्कूल। मैं जब आप बोल रहा हूं तो मतलब आपका ग्रुप, सो ग्रुप्स 1, 2, 3 एंड 4 आपके हिसाब से आपको आपकी आइडियल स्कूल्स डिजाइन करनी है, जिसमें आप फोकस करेंगे स्कूल के 3 पॉइंट्स पे, दैट इज द टीचिंग, एनवायरनमेंट एंड पीपल। मतलब स्कूल में टीचिंग कैसी होगी, स्कूल में वातावरण कैसा होगा और स्कूल में किस तरह के लोग रहेंगे। प्लस आपको ये डिसाइड करना है कि इस तरह की स्कूल का आउटकम क्या होगा, इस तरह की स्कूल का इम्पैक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा एंड इस तरह की स्कूल से किस तरह का भविष्य तैयार होगा। डू यू नीड मी टू रिपीट? मैं वापस रिपीट करूँ एक बार? यस सर। ठीक है, तो आपको अपनी आइडियल स्कूल या परफेक्ट स्कूल बनानी है मिलकर एज अ ग्रुप, और ये स्कूल को आप जब प्रेजेंट करेंगे ये 15 मिनट 20 मिनट के आखिर में, तो आपको ये प्रेजेंट करना है कि इस स्कूल में किस तरह की टीचिंग की जाएगी, इस स्कूल में वातावरण कैसा होगा और इस स्कूल में किस तरह के लोग रहेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है स्कूल के ऊपर। इसी के साथ साथ में आपको ये भी चर्चा करनी है वंस यू मतलब आपस में एंड देन वंस यू प्रेजेंट योर केस, के इस तरह की स्कूल आपने जिस तरह के शिक्षक, जिस तरह के जिस तरह की टीचिंग, जिस तरह का वातावरण और जिस तरह के लोग ये डिसाइड कर लिया, तो इसके वजह से क्या आउटकम मिलेगा, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस, क्या प्रभाव पड़ेगा। एंड ये इम्पैक्ट और ये आउटकम और ये इम्पैक्ट के वजह से फ्यूचर किस तरह का दिखेगा, मतलब आपके स्कूल के वजह से किस तरह का भविष्य निर्माण होगा। ठीक है, सो ऑल द 6 पॉइंट्स आर क्लियर, 3 फॉर द स्कूल एंड 3 फॉर द इफेक्ट ऑफ द स्कूल। यस So now I'll make the breakout rooms. तो आपको जो नंबर्स है वो नंबर पे आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ज्वाइन करना।
ओके, तो ब्रेकआउट का ऑप्शन दिख रहा है आपको? यस Yes. हाँ सर, ब्रेकआउट रूम्स। Yeah. ओके, तो जिनको नहीं दिख रहा है, जिनको दिख रहा है वो उनको हेल्प कर सकते हैं। If ठीक someone, से चला गया। 1 minute. Okay, if someone can share the screen कि ब्रेकआउट रूम आपको किस तरह से दिख रहे हैं, so that the people who are left can join. फोन का स्क्रीन अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बाकी लोगों को दिख जाएगा तो ब्रेकआउट रूम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो। सर क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सॉरी, यस दिख रही है। तो ये देखिए सर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्रेकआउट रूम्स। ठीक है, तो राइट साइड में वो 3 डॉट्स करके मोर का ऑप्शन है, उसमें आपको दिखेगा ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन, एंड आप वहां से एंटर कर सकते हैं अपने नंबर वाले ग्रुप में। थैंक यू स्वाति मैम। Okay, so those of us who are not in any room, we can take a look at all the rooms. If they have any problems, we can, without influencing their criteria and priorities, just help them out if they have any questions. Like the team. सर टाइम कम पड़ गया हमको। करेंगे Yes. करेंगे इसके बारे में अपन और थोड़ी गहराई में चर्चा करेंगे। इसके लिए एक्चुअली मैंने प्लान पूरा 1 घंटा किया था, बट देन इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर बाद में और थोड़ा टाइम लग गया, फिर और थोड़ा टाइम लग गया, तो वो बढ़ते चले गया। वी कैन नेवर हैव इनफ टाइम फॉर डिस्कसिंग एजुकेशन। All right, so I think everyone is here. कोई बचा है? Okay, I think the rooms are closed. ठीक है, so group 1, please present your ideal school. Yes, from my team, I will share our ideal school. Okay, so I'll start with first topic, teaching. So according to us, teaching ऐसी होनी चाहिए. Am I audible clearly? भारत सर म्यूट करके खासना चाहिए।
Sorry. Yeah. So can I continue? Yes. Yes. Okay, yeah. So according to our team, teaching ऐसी होनी चाहिए जहाँ restriction सिर्फ वो walls नहीं होने चाहिए, कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि जहाँ सिर्फ बच्चे 4 walls में ही पढ़े, एंड हर एक चीज की प्रैक्टिकल लर्निंग देनी चाहिए, जहाँ पे ना फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होने चाहिए और डिबेट होने चाहिए टॉपिक को लेके, जहाँ बच्चे अपने ओपिनियन अच्छे से रख पाए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ज्यादा फोकस देना चाहिए। प्री स्कूल के लिए प्लेवे मेथड ही फर्स्ट होना चाहिए, हर एक चीज वो प्लेवे मेथड से करें, एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। और जहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिर्फ टेक्स्ट बुक हमारा एम नहीं होना चाहिए, हम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक भी बच्चों को सिखाए, जहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस उनको नॉलेज जाना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली होलिस्टिक डेवलपमेंट पे पूरा फोकस होना चाहिए, जहाँ पे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दें, उन हर चीज को हम ट्राई करें कि होलिस्टिक अप्रोच हो रहा है, हम उनको उस तरीके से पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, सो फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली होना चाहिए, नो यूज ऑफ प्लास्टिक, और प्रोफेशनलिज्म कम होने चाहिए, लाइक होना चाहिए बट एक मन में ऐसा होना चाहिए कि जहाँ डर नहीं हो, नो फियर बच्चों में और टीचर्स में, मतलब हम कभी भी किसी से बात कर पाए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहाँ नो मार्क्स एंड नो कंपटीशन वाला सिनेरियो होना चाहिए, किसी में भी कंपैरिजन नहीं आना चाहिए कि ना हम मार्क्स के लिए कर रहे हैं और हम कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड इज पीपल, so there should be no hierarchy, levels नहीं होने चाहिए। अगर टीचर्स को कभी भी बात करनी है मैनेजमेंट से, डायरेक्टर, फाउंडर, वो कभी भी उनसे बात कर पाए। बच्चों को बात करनी है ऑफिस में जाके, तो डोर शुड बी ओपन एवरी टाइम, वो कभी भी जाके ऑफिस में बात कर सकते हैं। तो लेवल्स नहीं होने चाहिए कि एक टाइम है और इसी टाइम पे ही हम ये पर्सन से बात कर सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एंड टीचर शुड बी डेडिकेटेड टू देयर वर्क्स, ऐसा, और दे शुड बी एजुकेटर, वो एक ऐसी भूमिका में रहे जहाँ उनको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम सिर्फ टीचर्स है तो हम सिर्फ 6 आवर्स ही जॉब करेंगे एंड मनी अर्न करने के लिए ही जॉब करें। उनको पूरा फ्रीडम होना चाहिए, जहाँ वो हर एक प्लान को अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ, उनको जैसा लगता है मेथड उनको जो चाहिए, वो उनको अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपना करिकुलम जो उनको दिया हुआ है वो चेंज करके जो ज्यादा क्लासरूम में नीडेड है वो उनको पढ़ा पाए। और फ्रीडम होनी चाहिए कि ना उनको अपना पॉइंट रखने के लिए हमेशा सब वेलकमिंग हो कि हाँ, आपको अगर लगता है ये सही है तो आप इसे चेंज कर सकते हो। और पीपल को, हर एक को अच्छे से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बायस जहाँ पे हम नहीं लगे और वो पार्शियल जहाँ पे नहीं लगे। एंड हमारे स्कूल का लर्निंग आउटकम ये होगा फ्यूचर का, जब हमारे स्कूल से बच्चे पढ़ के जाएंगे, सो वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली they should know they are a responsible citizen, they should aware of their responsibilities। उनको पता होना चाहिए कि हम एक समाज के नागरिक है और हमारी ये जिम्मेदारियां होती है। और वो जॉब पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए कि उनको ये नहीं होना चाहिए कि अब मैं जॉब के लिए सर्च करूं। दे शुड बी इंडिपेंडेंट, वो इतने स्किल्ड होने चाहिए, उनको ये तब तक समझ में आ जाना चाहिए कि वो जहाँ भी जाएंगे दे शुड एबल टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। अगर मुझे पता है कि मैं डांस में हूँ तो आई एम एबल इंडिपेंडेंटली कि मैं खुद का इंस्टीट्यूट भी ओपन कर पाऊँ। एंड इम्पैक्ट ये होना चाहिए कि चेंज मेकर्स, हमको जब भी हमारे स्कूल का इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए, एक रिवॉल्यूशन इन स्कूल सिस्टम, और इंस्पिरेशन मिले लोगों को, एक मोटिवेशन मिले, और एज अ चेंज मेकर सब हमें देखे। दैट्स इट, थैंक यू। Thank you. Okay. So we'll move on to group number 2. हेलो सर, हमारे ग्रुप में जो चर्चा हुई वो आपके साथ साझा करते हैं।
जैसे हमारा आइडियल स्कूल जो होता है वो स्कूल कैसे हो ये हम भी देखेंगे। हमारे ग्रुप में जो चर्चा हुई उसके अनुसार स्कूल इज नॉट अ बिल्डिंग, बाहर से कैसी है उससे ज्यादा ये है कि वहाँ पे कैसा टीचिंग हो रहा है। जैसे टीचिंग मतलब ना तो बच्चों को पढ़ाना, बच्चे खुद पढ़ पाए ऐसा एनवायरनमेंट एक स्कूल में होना चाहिए, और वही बातें जो आगे उनको समाज में अच्छे से नागरिक होने के लिए तैयार करती है, ऐसा टीचिंग अपने स्कूल में होगा। और जो वातावरण उनको मिलने वाला है वो इतना आश्वस्त होगा कि जैसे अभी मैम ने बताया कि ना कोई रोक टोक होगी, ना कोई परेशानी होगी कि कोई अपना डिस्कशन कर सके ना कर सके इसके बारे में। तो एक ऐसा वातावरण अपने स्कूल में उनके लिए हम तैयार करेंगे। और ये वातावरण ये देख के नहीं होगा कि वो कहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है, कहाँ किस कम्युनिटी से आए हैं। वातावरण ऐसे होगा कि जैसे हमने कहा है हमारे ग्रुप में चर्चा करते हुए कि एक स्लम एरिया से आया हुआ बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है। तो उसका वो जहाँ पे रहता है उसका तो जो एनवायरनमेंट है वो ये नहीं है कि वो वहां से कलेक्टर बन पाए, लेकिन स्कूल ने उसे वो एनवायरनमेंट दिया है कि वो कलेक्टर बनने तक का फासला तय कर पाए। तो हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट इस तरीके से होना चाहिए। और जो बच्चों के मन पे इम्पैक्ट होना चाहिए इस सभी चीजों का, वो ना तो अर्निंग सोर्स के लिए होना चाहिए, तो बस ये चीज के लिए होना चाहिए कि वो कम्युनिटी में जब जाए एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बन के जाए और ये सब चीजें उनमें आए। और हमारे आउटकम जो होंगे वो भी उस प्रकार से हमने नियोजित किए होने चाहिए कि बच्चों को सिर्फ मार्क्स यह एक उनकी यानी शख्सियत आंकने का तरीका ना होना चाहिए, और ओवरऑल जो उसका डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के हिसाब से आउटकम्स जो है वो हमें यहाँ पे तय करने चाहिए। और फ्यूचर ऑब्वियसली अगर ऐसा एनवायरनमेंट उसे मिलना है, अगर ऐसा टीचिंग उसे होना है कि वो एक सशक्त नागरिक बन पाए, तो उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट ही होगा। ऐसे हमारे ग्रुप में डिस्कस हुआ है। थैंक यू। Thank you very much, Deepali ma'am. Can we have group number 3? मीना मैम या दीपा मैम, आपने या गो मैम, कोई भी बोल सकता है। यस सर। तो हमने सर एक्चुअली टाइम भी कम, तो ऐसे काफी कुछ रह भी गया डिस्कशन के लिए, हमें लीव होना पड़ा। तो हमने जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग स्कूल एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे खुद वो प्रैक्टिकली देख के और फील करके लर्न करें, ना कि वो बुक्स का पूरा रट्टा मार के या फिर हम उसको बोले ये दिस इज ए दिस इज बी, तो वो ऐसा लर्न करे। वो खुद फील करे और एक्सपेरिमेंट करके फिर उनको जो खुद को फील होता है उसको लर्निंग हमारे स्कूल में होनी चाहिए, वो लर्निंग होनी चाहिए। और बच्चों का कनेक्शन बनाया जाए पहले, तो जैसे कि हम कोई भी टॉपिक को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम जैसे कि हमारा है कि क्राइसिस का है तो पॉल्यूशन का है, तो हम डायरेक्टली ऐसे जैसे होता है स्कूल्स में पॉल्यूशन टॉपिक है और उसके ऊपर टीचर एक्सप्लेन करती है, फिर थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है। तो हमारे स्कूल में ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे कनेक्शन बच्चों का उनके साथ बनाया जाए कि क्राइसिस हो रहा है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो नेचर में, अपनी सराउंडिंग में, और आपको कुछ दिखता है क्या, तो उनका लिंक करके वो सब्जेक्ट से फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए और वो टॉपिक पे डिस्कशंस के थ्रू जाना चाहिए, rather than कि हम उनको बता दें पॉल्यूशन में होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एयर, नॉइस और साउंड पॉल्यूशन। उसके मतलब वैसा नहीं होना चाहिए, और हम उनको ही बोले कि आप देखो, जैसे कि हमने अपने स्कूल में भी किया था क्राइसिस वगैरह का, तो बच्चों की तरफ से ही हमें पूरा रिस्पॉन्ड मिला। और उसके बाद हमारा स्कूल है जैसे, तो उसका सराउंडिंग कैसे होना चाहिए, ऐसे बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकदम हाई फाई बड़ा पूरा है, वैसा नहीं होना चाहिए। नेचर से पूरा रिलेटेड होना चाहिए, जहाँ पे पूरा ग्रीनरी हो, तो उनको भी समझ सके कि प्लांटेशन क्या होता है, वो खुद करे तो उनको पता चलेगा कि सीड सोइंग कैसे एक्टिविटी होती है और कितने दिन लगते हैं प्लांट को ग्रो होने में, और उसको सनलाइट कितनी जरूरी है, कितना पानी जरूरी है, वो खुद अगर जब तक नहीं करेंगे तब तक तो फिर कोई काम की बात नहीं है, वो बुक में से पढ़ते हैं और देखते रहते हैं। तो वैसा होना चाहिए प्लांटेशन, जहाँ पे वो कर सके। वो सनलाइट का अगर चीज हम बोल रहे हैं, तो जैसे हम हॉट का बोलते हैं कि आपको सेंसेस में कैसा फील हो रहा है, तो अगर उनको सनलाइट उनकी बॉडी पर आ रही है
तो उन्हें कैसा फील हो रहा है, तो वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक तो वो बोलेंगे कि हाँ सन से हमारी सनलाइट अगर हमारे ऊपर आती है तो हमें थोड़ा गर्म लगता है। पर अगर वो फील करेंगे तो आई थिंक एग्जैक्ट वो एक्सप्रेस कर पाएंगे अपना। तो इसीलिए वैसे होनी चाहिए स्कूल में, और उनको बच्चों को फ्रीडम दिया जाए जहाँ पे वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। हमारे हिसाब से ना चले कि आज हिंदी का पीरियड है तो चलो हिंदी में ये टॉपिक लेंगे हम, ये स्टोरी है तो ऐसे ऐसे पढ़ो, ये हुआ स्टोरी में। नहीं, उनको देना चाहिए फ्रीडम कि आप क्या सब्जेक्ट चाहते हो, किस सब्जेक्ट पे डिस्कशन हो। अगर हमारा कुछ इंटेंशन है पढ़ाने का कि आज हम ये स्टोरी लेंगे, बट बच्चों का मूड नहीं है, बच्चों का कुछ और है, तो हम फन में भी वो लर्निंग करवा सकते हैं उनसे। क्विज हो गई या फिर डिबेट्स या फिर ऐसे डिस्कशंस के थ्रू हम जा सकते हैं वो टॉपिक्स में। तो बच्चों को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, ना कि उनको ऐसे दबा के रखो कि हम टीचर्स हैं और आप स्टूडेंट हो तो आप हमारी सुनोगे। और उसके बाद आउटडोर और इंडोर एक्सपीरियंसेस जैसे हमने डिस्कस किया, तो इंडोर तो जैसे क्लासरूम में हो गया, आउटडोर हमें उनको बाहर ले जाना चाहिए, नेचर वॉक वगैरह, वो खुद ही सब देखे और ऑब्जर्व करेगी चीज को। उसके बाद वो बच्चों में जो हाँ स्कूल में पेरेंट्स का भी फीडबैक होना चाहिए, पार्टिसिपेशन। जैसे कि हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं या फिर कोई इवेंट सेलिब्रेशन या कुछ करते हैं, तो बच्चों स्कूल में हम पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन पूरा रखें, ताकि उनकी तरफ से फीडबैक आए। मंथ में कम से कम एक बार मीटिंग कर रहे हैं तो उनकी तरफ से हमें पूछना चाहिए, ये भी ऑप्शन देके कि आप क्या चाहते हो चेंजेस, या फिर कोई ऐसा है कि आप बच्चों को उस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व करके उनको लर्न करवाना चाहते हो। जैसे कि हम शेफ डे करते हैं तो बच्चे खुद बनाते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे डेज होते हैं जो सेलिब्रेशन के थ्रू जाके लर्निंग में हो सकते हैं। वो फन वे में हो गया, ये हुआ। और उसके बाद पार्टिसिपेशन होना चाहिए पेरेंट्स का, जैसे कि हम स्पोर्ट्स डे है तो वो पार्टिसिपेशन पेरेंट्स का भी हो। हम बच्चों को भी करवाते हैं, वो तो हर स्कूल में होता है, बट पेरेंट्स भी अगर उनके साथ रहेंगे तो उन दोनों का भी बॉन्ड अच्छा होगा, और स्कूल से पेरेंट्स भी टच में रहेंगे, और हर एक चीज का उनको भी अपडेट मतलब रहेंगे वो कि ये हो रहा है स्कूल में और इस तरीके से हो रहा है, ये होना चाहिए। और इनडायरेक्टली फिर वो बच्चे जो बचपन से सीखेंगे तो उनका इम्पैक्ट भी उन पे वही पड़ेगा कि एक्सपीरियंस करके देखेंगे तो आगे चल के उनको ही वो काम में आएगी चीजें। और इनडायरेक्टली उनका जो इम्पैक्ट होगा वो सोसाइटी पे ही होगा। उनको जो वैल्यूज दी जाएगी, जैसे ट्रुथ पे चलना चाहिए, या फिर भले स्टार्टिंग में बच्चे नहीं मानेंगे बट बाद में वो जब रियलाइज करेंगे तो उनको वो सब वैल्यू समझेंगे कि सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, या ऑनेस्टी होनी चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए फ्रेंड्स के साथ। तो वो डिस्कशंस वगैरह के थ्रू हम सब ले सकते हैं इसको। That's it. Thank you. Thank you very much, Deepika ma'am. Shall we move on to group 4? Yes, can I share? Yes. Indrani ma'am and Nilesh sir? Yes, yes. Yeah. So I have written some points. Let me just. Okay. So about the teaching, there will be two-way teaching. Matlab it will be interactive teaching from the student sides also and teaching from the teacher side also. And सिखाने के लिए वहाँ पे just there will not be only books, there will be variety of thing that interest children, और children को और बच्चे को जो सीखना होगा वो चीजें वहाँ पे हम मतलब एटमॉस्फेयर में रखेंगे out of the curriculum ऐसा। And the teaching will be friendly, और there will be no fear, मतलब fear free environment में teaching होगी कि टीचर है हमको सुनना है तभी हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है। It will be a friendly discussion, a teaching based on strictly based on exchange of opinions and discussions. Then teaching can be in different languages. अगर बच्चे को concept नहीं समझ रहा है तो हम उसको मदर टंग में concept समझा सकते हैं, और जहाँ पे हमको लैंग्वेज सिखानी है हम वहाँ पे लैंग्वेज क्लास, स्ट्रिक्टली लैंग्वेज क्लास लेंगे। बट अगर बच्चे को नहीं समझ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट तो हम लोकल लैंग्वेज में या फिर जो उसकी मदर टंग है उसमें उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। फिर द एनवायरमेंट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी लर्निंग, मतलब ऐसा नहीं कि क्लास के अंदर ही लर्निंग हो, आजू बाजू में मतलब हर चीज में लर्निंग कैन बी इग्नाइटेड। सो हमको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। सपोज अगर हमारा है तो अगर हमने
अगर हमारे स्कूल के पास लेक है या फिर कुछ रिजर्वायर हमने अगर बनाया, कुछ नेस्ट बनाए बर्ड्स के लिए, तो अगर हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया और हमने उन बर्ड्स को स्टडी किया कि ये बर्ड्स कब आते हैं, मार्च में आते हैं या फिर जो भी आते हैं, जिस सीजन में आते हैं, इस सीजन में ये बर्ड्स आते हैं, ये सीजन में ये इंसेक्ट्स आते हैं, तो ऐसा हमको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है हमारे स्कूल में। एंड हाँ, नेचर में होगा, एजुकेशन अमंग्स नेचर विल बी एनकरेज, और एजुकेशन बेस्ड ऑन वैल्यूज ज्यादा एनकरेज करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन विल बी एनकरेज, नॉट जस्ट थियोरी। फिर हमने हाँ, वन मोर पॉइंट वाज देयर कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इट विल बी, मतलब कुछ कुछ स्कूल्स बहुत डरावनी होती है, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बराबर होता, काली काली, मतलब पूरा हॉल्स में इस साइड में बच्चों को नहीं जाना रहता, तो इट विल बी, ऐसी डरावनी स्कूल नहीं रहेंगी हमारी, बच्चे कहीं भी आ जा सकेंगे। देन पीपल, जो हम टीचर्स रहेंगे स्कूल में, टॉकिंग अबाउट द टीचर्स, दे विल बी क्वालिफाइड इन देयर सब्जेक्ट, दे विल बी एक्सपर्ट, दे विल नो व्हाट दे आर डूइंग। अगर उनको सपोज नहीं पता है तो कोई चीज के बारे में, तो दे हैव टू बी एक्सेप्टिंग कि मुझे नहीं आता है, और बाद में दे कैन वो बच्चे से फिर कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये था, सो दैट ऑल्सो विल बी डन। फिर हम पीपल में हम लोकल मेंटर्स को भी बुलाएंगे। अगर किसी एरिया में कोई ट्रेडिशन है, कोई अगर ज्यादा एक्सपर्ट है सपोज किसी चीज में, तो वो इंसान भी हमारे यहाँ पे हमारे स्कूल में टीचर बन सकता है। ही कैन टेक अ क्लास, ही कैन टीच व्हाटएवर ही नोस टू द स्टूडेंट्स। और पीपल में वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड पेरेंट्स, सो पेरेंट्स को भी हम अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि पापा और मम्मी का कितना रोल होना चाहिए स्टडीज में, कैसे उनको प्रेशर नहीं दे सकते हम बच्चों को, कैसे उनको हम एनकरेज कर सकते हैं। सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स विल आल्सो बी कैरिड आउट इन आवर स्कूल। और जो टीचर्स रहेंगे वो भी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, विल बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स स्टूडेंट। हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, तो उसको समझने के लिए टीचर्स मस्ट हैव एम्पैथी। अगर ये नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है तो कैसे कर रहा है, तो एम्पैथी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो टीचर्स, हमारे स्कूल के टीचर्स में होनी चाहिए। फिर ऐसे स्कूल में आउटकम विल बी, हमारा स्टूडेंट एक ही चीज में अच्छा नहीं रहेगा, ही विल बी एन ऑलराउंडर, ही विल हैव हिज लाइफ स्किल्स, जो 21st सेंचुरी की स्किल्स है, ही विल हैव दोस स्किल्स। मतलब हम वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, बट सर्टेनली he'll have लाइफ स्किल्स। और ऑल्सो बच्चे ही नहीं तो आउटकम में टीचर्स भी आएंगे, क्योंकि टीचर्स भी ओवर द इयर्स बहुत कुछ सीखेंगे बच्चों से, सो आउटकम में लर्न इट टीचर्स भी आएंगे। और इसका इम्पैक्ट ऐसा होगा कि हमारे सोसाइटी में देयर विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और अगर हम बच्चे को माइंड से तैयार कर रहे हैं, माइंड से स्ट्रांग बन रहे हैं, तो आजकल जो इतना बड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है इन द सोसाइटी, पीपल कैन टेक फेलियर वेरी इजीली, तो दैट विल बी लेस। मेंटल हेल्थ को तो कुछ देते नहीं है हमारे इधर, कुछ क्या बोल सकते हैं, मेंटल हेल्थ को कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो हाँ इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो अगर हम मतलब अगर हम स्कूल में ऐसा होगा कि नहीं कंपटीशन नहीं करना है हमको, वी हैव टू डू आवर बेस्ट एंड वी हैव टू फॉलो आवर पैशन, तो ऐसा होगा, तो देयर विल बी लेस डिप्रेशन इन द सोसाइटी, more creativity in the society and more innovation in the society, and all this will all lead to the progress of the society. और हमारे it was very hard to predict the future ऐसे स्कूल का, but we have come with few points. So ऐसी स्कूल obviously it will be recognized as an unique school, as an alternative school, और धीरे धीरे पेरेंट्स को भी समझेगा कि एक्चुअली नीडेड क्या है बच्चों के लिए, तो हमारे स्कूल में फिर एडमिशन्स भी बढ़ेगा और फिर हमारे स्कूल का डेवलपमेंट भी होगा। डेवलपमेंट ऐसा होगा स्कूल का मतलब स्कूल भी बहुत कुछ सीखता है ना बच्चों से, सोसाइटी से, तो हमारा स्कूल भी स्कूल की थिंकिंग भी डेवलप होगी। और क्योंकि स्कूल के जो अथॉरिटीज है, जो भी पीपल है, दे आर रेडी टू लर्न, दे आर रेडी टू चेंज सोसाइटी। जैसा मतलब
वो एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस, ऐसी मेंटालिटी है, तो हमारा स्कूल हमेशा एक स्टेप ऊपर ही जाता रहेगा, डेवलपमेंट की तरफ ही जाता रहेगा। एंड दिस स्कूल विल आल्सो बी सस्टेनेबल। मतलब अगर कोई अनसर्टन सिचुएशन आ गई या फिर जैसे अभी कोविड सिनेरियो आ गया, सो वी विल स्टिल फाइंड अ वे, क्योंकि हमारे आइडियाज बहुत क्लियर है, वी आर वेरी पैशनेट अबाउट द लर्निंग, और फिर हम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे कि बच्चों को लर्निंग पहुंचे। सो दिस विल बी अ फ्यूचर। सो इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग, Indira ma'am, Nilesh sir, Pooja ma'am, please add to this. No, ma'am, you have Sir, covered all the things. I like to add some points. Sir, Yes, am I yes, audible? ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes. Go ahead, ma'am. तर सर मला याच्यामध्ये काही पॉइंट जोडायचे आहे. जसं फक्त सब्जेक्ट टीचिंग मध्ये फक्त सब्जेक्टच इम्पॉर्टंट नाही आहेत. जसं की एक चांगला डॉक्टर झाला आणि त्याला जर त्याच्या पेशंट विषयी किंवा समाजाविषयी थोडीही जर संवेदनशीलता नसली तर तो एक चांगला डॉक्टर असूनही काहीच कामाचा नाही. आणि एक चांगला सायंटिस्ट आहे आणि तो जर देशद्रोही निघाला तर तोही या देशाच्या काहीच कामाचा नाही. म्हणून जे आपण मराठीमध्ये आम्हाला म्हणतो की मूल्य रुजवणे, राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रीय एकात्मता, संवेदनशीलता, सहनशीलता, हे जे काही मूल्य आहेत हेही मुलांमध्ये या विषयाच्या माध्यमातून किंवा शिकवता त्या टीचिंग मधून हे मूल्य पण विद्यार्थ्यांमध्ये नकळत रुजले पाहिजे आणि ते रुजवण्याचं काम शिक्षकांनी केलं पाहिजे. आणि दुसरा एक पॉइंट मला म्हणायचा असं, जसं नवीन शिक्षण पद्धतीत तो मुद्दा फोकस केलेला आहे की प्रायमरी एज्युकेशन, मग ते पूर्ण राज्यात असो की कुठेही असो, प्रायमरी एज्युकेशन हे मदर टंग मध्ये असलं पाहिजे, जेणेकरून समजा ऑल द वर्ल्ड प्रत्येकाचं एज्युकेशन हे मदर टंग मध्ये आहे. फक्त इंडियातच आपण याच्या इंग्लिशवर खूप सारा फोकस देतो. इंग्लिश इम्पॉर्टंट आहे, इंग्लिश इज इम्पॉर्टंट, बट ऑल जे मुलाचा सर्वांगीण विकास आहे तो प्रायमरीच्या लेवल मधून जेव्हा तो जातो तेव्हा जी भाषा त्याला कळतच नाही तीच भाषा आपण त्याला वयाच्या 3ऱ्या आणि 4थ्या वर्षीपासून जर लादत असू तर ते शिक्षण मग आनंददायी शिक्षण होऊ शकत नाही. जिथे जे शक्य आहे त्याप्रमाणे मुलाला त्याच्या मदर टंग मध्ये शिकण्याचा अधिकार आपण दिला पाहिजे आणि चर्चेच्या माध्यमातून आणि याच्या माध्यमातून मुलांना शिकवलं पाहिजे एक गोष्ट. आणि जे पेरेंट्स आहेत त्यांच्या मताचा सम्मान केला पाहिजे. जैसे कि मैंने बहुत सारी स्कूल देखे हैं सर जहाँ पे पेरेंट्स अपनी बात कहने के लिए जाते हैं और टीचर बोलो या स्टाफ बोलो या संस्था बोलो बोलते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, तुमच्या वेळेस काही तसं नव्हतं, आता वेगळं आहे आणि तुम्हाला काही गरज नाही, तुम्हाला ते समजत नाही. तो ये बहुत गलत बात है. पेरेंट्सचा हा मताचा सम्मान हा प्रत्येक शाळेमध्ये आपण केलाच पाहिजे. आणि ग्रुप डिस्कशन मधून जे पण आयडियल स्कूल आणि युनिक स्कूल आपली बनल तर ती स्कूल कशी असली पाहिजे, तर विदाऊट पे असली पाहिजे, विदाऊट मनी असली पाहिजे. जसं की आज प्रत्येक म्हणजे ज्यांच्याजवळ पैसा आहे, ज्यांच्याजवळ सर्व काही आहे ते मुलं या शाळेत शिकतील, पण माझ्या गरिबांच्या शेतकऱ्याच्या मुलाविषयी काय, तो या शाळेमध्ये शिकू शकल काय? मग तो जर या युनिक शाळेमध्ये त्याला शिकायचा आहे तर तो केव्हा शिकल? तो तेव्हा शिकल जेव्हा गव्हर्नमेंट अशा पद्धतीच्या शाळा उभारण आणि तयार करल, तेव्हा तो माझ्या खालच्यापर्यंतचा तो माझा विद्यार्थी त्या शाळेत शिकला पाहिजे असं मला वाटतं. थँक्यू सर. Thank you, Indira ma'am. Very powerful points. Any other points that need to be added? सर मैडम से मैं बिल्कुल सहमत हूँ. ये जो बात मैडम ने बताई कि भाई पेरेंट्स की जो बात है वो बिल्कुल भी समझ के नहीं लेते हैं और ये बिल्कुल हकीकत है सर. मेरे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, वहाँ पर बच्चों को नॉवेल्स पढ़ाए जाते हैं सर. अब वो भी नॉवेल एकदम लिटरेचर लैंग्वेज है सर. यानी मैं अगर पढ़ता हूँ तो मैं भी उसमें डिफिकल्ट फाइंड आउट करता हूँ, मुझे खुद को डिक्शनरी खोल के बैठनी पड़ती है. तो बच्चे, और वो भी पूरी इंग्लिश नॉवेल्स हैं और वो भी कल्चर पूरा उसमें इंग्लिश स्टोरीज बताई गई हैं. मैंने उनसे सजेस्ट किया था कि ठीक है आप ये चाह रहे हैं, दैट इज ओके, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसके अलावा हमारे जो महापुरुष रहे, जैसे शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, या फिर हमारी गीता है,
या हमारे और भी जो संस्कृत से या हमारे संस्कृति से संबंधित जो भी है ग्रंथ है, तो उसके संबंध में आप उनको अट्रैक्ट करो। हमारी धरोहर यानी आज बच्चों को गीता, रामायण, महाभारत या और भी जो हमारे जो कुछ भी रहे, तो उनके बारे में, महापुरुषों के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा कि भाई गीता की कोई एक श्लोक ले लो या उनसे कंपटीशन करवा लो बच्चों से, या हफ्ते में एक दिन गीता की क्लास रखो कि गीता के सार क्या है, उसका अर्थ क्या है। बच्चों में कहीं ना कहीं हमारे देश की जो संस्कृति धरोहर है वो कहीं ना कहीं उनमें आएगी, और उसमें सब अच्छे मूल्य बताए गए। कोई गलत उसमें ऐसी कुछ चीज नहीं बोले कि नहीं सर आप जो बोल रहे हैं ऐसा थोड़ी नहीं, गीता तो हर कोई पढ़ा था, ये तो हर कोई पढ़ता, नॉवेल कोई नहीं पढ़ा था। तो उन्होंने मुझे सीधा सीधा रिफ्यूज कर दिया और बोला ऐसा नहीं हो सकता, आपको कंपलसरी है, आपको महंगी महंगी किताबें खरीदनी पड़ेगी, और आपको यानी एक एक नॉवेल सर वो 500-600 रुपए की सर, और ऐसे वो 10 नॉवेल का उन्होंने सेट प्रोवाइड करके दिया। अब आप सोचिए, और बच्चों ने एक पन्ना भी खोल के नहीं देखा, क्योंकि उनको इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। उनको अगर बाल हनुमान की बात करूं, या मैं हनुमान के कैरेक्टर की बात करूं, या मैं बाल कृष्ण की बात करूं, तो उनके जो बचपन का जो एनवायरनमेंट है, उनका जो रहन सहन रहा, जो कुछ भी था, ये सब देखिए आप नेचर से, संस्कृति से, परिवार से संबंधित थे। ये अब आचरण उनमें नहीं आते ना मैडम। तो ऐसा, सॉरी टू इंटरप्ट लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बात रखनी चाहिए। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो देयर इज नो नीड टू बी सॉरी। एंड यस, ये है कि हम लोग इन सब बातों पे थोड़ा और डिटेल में बाद में डिस्कशंस करेंगे। फॉर नाउ वी विल हैव टू एंड द सेशन हियर। एंड कल की जो शुरुआत होगी वो आज के फॉलोअप से होगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस बात पर इतनी सारी चर्चा कर चुके हैं। कुछ बातें शायद अभी आप लोगों को रियलाइज हो रही होगी, एंड दे आर ऑल नेसेसरी पॉइंट्स। अक्सर ऐसा होता है कि जो आई वुडंट कॉल इट एग्जैक्टली अ परफॉर्मेंस, मगर जो लोगों के सामने हम लोग जो प्रेजेंट करते हैं वो हो जाने के बाद में काफ़ी बातें हम लोग को सूझती है, काफ़ी बातें हम लोग को स्ट्राइक होती है। तो these things should not be left out. That is also one of the reasons for the journal. जो journal हम लोग maintain करने वाले हैं, I am also going to maintain it with all of you. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग maintain कर रहे हैं, मतलब it is not supposed to be one way. तो ये सारी बातें हम लोग एड्रेस करेंगे। एंड yeah, I'll also tell you all one thing कि अभी जो आप लोगों ने डिस्कस किया, बस यही मकसद है एनईपी का। कुछ बातें इसमें से एनईपी में रिकॉर्ड हो चुकी है, कुछ बातें वो होप कर रहे हैं कि लाइक वन ऑफ द पॉइंट्स इज दिस कि जरूरी नहीं है कि अभी एनईपी निकला तो फिर अगले 5 साल 10 साल में एनईपी में हम लोग चेंजेस नहीं ला सकते। सो दे हैव केप्ट इट ओपन कि अभी के जो उनके एम्स है वो एम्स अगर फुलफिल हो गए, जल्दी फुलफिल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो जो पुराना एनईपी है वही चला लेंगे उसके बाद में भी। तो दे विल मॉडिफाई इट सो दैट इट इवॉल्व्स। जैसा एक पॉइंट ये भी निकला था कि जिस तरह से सोसाइटी डेवलप होती है, स्कूल डेवलप होती है, फिर वापस सोसाइटी, फिर वापस स्कूल, या the other way around, स्कूल डेवलप होती है, फिर सोसाइटी, फिर वापस स्कूल, फिर वापस सोसाइटी। तो वो तभी पॉसिबल है when all these things are flexible. तो ये एक बात है। Then even about the languages part, it is very necessary to not lose touch with our native languages, local languages. एंड इससे ज़्यादा और भी नेसेसरी ये है, जो संवेदनशीलता की बात हुई थी, सेंसिटिविटी की जो बात हुई थी, कि काफ़ी बार ऐसे होता है कि इंग्लिश सीखने के रेस में हम लोग ये भूल जाते हैं कि और भी भाषाएं हैं। एंड हर भाषा का अपना एक कल्चर भी होता है, वो कल्चर को हम लोग ठुकरा देते हैं। सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी विल डिस्कस इन ग्रेट डेप्थ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। एंड यही कारण है कि ये प्रोग्राम इतना लंबा है, नहीं तो 20 दिन की ट्रेनिंग का क्या मतलब। तो
these are topics that need to be addressed, and these are topics that need to be thought about, not from a political point of view, not from an impulsive point of view. And जो हम लोगों ने चेंज मेकर के टॉपिक में डिस्कस किया कि अगर चेंज सच में लाना है तो वो धीरे होना चाहिए, अपने गति से, समाज की गति से होना चाहिए, एंड वो गति पहचानना और उस गति को बढ़ावा देना दोनों जरूरी है. मतलब just because a society is moving slowly does not mean that that is the only speed at which you can go. तो सोसाइटी को भी हम लोग किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करने के पहले पहचान कैसे सकते हैं, ये सारी बातें भी हम लोग अगले कुछ दिनों में डिस्कस करेंगे. For today, I'm sure there will be a lot of questions that will come up. There will be a lot of points of discussion that will come up. तो आप वो सब संभाल के रखिए, हम लोग कल की शुरुआत उसी से करेंगे. So thank you very much. I hope you all enjoyed today's session and hope to see you all tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.